की जो मेरा वीडियो था यू विल सी. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न रिमेनिंग सम बाय कंटिन्यूटी. ओके, जो मैंने पहले भी बोला था 8.1 में हम देखने वाले हैं कंटिन्यूटी के रिमेनिंग सम. मीन्स अगर उसमें रिमेबल डिसकंटिन्यूटी कैसे था, जब डिसकंटिन्यूटी कैसे था. ओके, उसके हम सम अभी देखने वाले हैं. सो प्लीज watch my previous video also and this video also we will see in end तक देखना है आपको. Okay, so let's start. It's very simple in exercise 8.1. Are you visible? Everyone दिख रहा है? Yeah, good. So it's very simple example. First of all, simple instruction. The given function has removable discontinuity. Then if it has removable discontinuity, so we redefine this function becomes continuous. मतलब क्या करना है हमें यहाँ पे, जो फंक्शन दिए हुए वेरियस फंक्शन, सो इट्स गिव्स आइडेंटिफाई इट्स डिसकंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस. एंड सपोज डिसकंटिन्यूअस, सो कोई दिक्कत नहीं. रिमेबल डिसकंटिन्यूटी यू लर्न, यस एंड नो, यू रिमेंबर. या इट्स वेरी सिंपल. रिमेबल डिसकंटिन्यूटी कब आती है, जब functional value and function limits those are equal. No, those are not equal, and then we say this is the removable discontinuity. And then we redefine this function. जो function है वो redefine करना, मतलब functional value change आती है. कौन से value को continuous आ रहा है, so we'll redefine and then we'll say this is the removable discontinuity. आई बात समझ में. So let's see. Very simple function. f of x क्या दिया है, f of x is gives e raised to 5 sin x minus e raised to 2x and denominator 5 tan x minus 3x and x is not equal to 0 and x is equal to 0, then we write 3/4. Okay, means we will check first what this function is continuous or discontinuous, and then later we decide this is removable discontinuity. So we will check, and then you have what we have in continuity, functional value and limit value, those are equal. Then we say what, this is continuous. So we know functional value मतलब कितना है, f of 0 के लिए कितना दिया है, 3/4. It's given, it's totally given. Okay, and then later we'll find out functional value, then later limit value. So we define limit f of x tends to 0 is nothing but 2. Limit x tends to 0, e raised to 5 sin x minus e raised to 2x and denominator 5 tan x minus 3x. And then you have standard formula limits. You know, limit x tends to 0, e raised to x minus 1 upon x should be log a, and that meaning is 1. Limit x tends to 0, sin x upon x should be is 1. Limit x tends to 0, tan x upon x, it should be also 1. This very simple formula you learn in limits. You have studied already. कुछ किसी को याद नहीं होगा तो previous also link is having in my description, so you will check it. देख लेना. किसी को कोई प्रॉब्लम हो so ask me in WhatsApp through, या कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं कि टीचर how to define, how to use and how to remember this limits formula also. I will give you tricks also. Okay, so listen carefully. So ये formula पता है मुझे, so अभी इसका use कैसे करना है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है. So see, limit x tends to 0, numerator is gives e raised to 5 sin x minus e raised to 2x and denominator is having 5 tan x minus 3x. Okay, and then you remember which one formula? Are you visible? Yeah. Limit x tends to 0, e raised to x minus 1 upon x should be 1. So we observing e raised to मतलब raised to power कुछ भी रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं. बाद में उसे हम कैसे डिफाइन करें वो भी बता देंगे. So first दिमाग में क्या होना चाहिए, e raised to, तो which one formula, लिमिट क्या है, x tends to 0. So we remember limit x tends to 0 raised to x minus 1 upon x should be 1. So न्यूमरेटर में मैंने क्या किया, -1 + 1 ऐड कर दिया. कैसे, देखो ब्रैकेट डाला है मैंने, e raised to 5 sin x -1 माइनस
माइनस साइन बाहर निकाला तो अंदर क्या होगा माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस शुड बी प्लस, माइनस माइनस शुड बी व्हाट प्लस, यू नो. माइनस से मल्टीप्लाई किया तो e raised to minus 2x as it is minus 1 and this plus 1 it's making 0 means just express किया मैंने e raised to 5 sin x and e raised to 2x में minus 1 and outside minus साइन निकाला, क्योंकि प्लस कर देते तो क्या होता, it's not applicable this formula, so इसलिए मैंने माइनस साइन वहां पे आउटसाइड राइट किया. Are you getting this step? It's most important step in this. This is most important step. ये दिमाग में आना चाहिए, मतलब गेम की तरह. Which one strategy we apply? Okay? And denominator is having 5 tan x minus 3x as it is. Okay? इससे कोई दिक्कत नहीं. So we observing फॉर्मूला क्या है अपने पास, लिमिट x टेंड्स टू 0. देखो बार बार मैं फॉर्मूला की तरह जा रही हूँ. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लिमिट्स, देन लेटर कंटिन्यूटी विल गेट. मैंने बहुत बार बताया कि फंक्शन अच्छे से मालूम होना चाहिए, उसके बाद लिमिट्स आएगा, लिमिट्स के बाद कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव, मतलब एक चेन है कैलकुलस की. इट्स वेरी सिंपल. और अलजेब्रा अलग है, वो भी हम धीरे धीरे भी पढ़ने वाले हैं. अलजेब्रा इट्स वेरी इजी, एज लाइक डिटरमिनेंट, मैट्रिसेस, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस सीरीज हम वो भी पढ़ने वाले हैं. ओके, सो फर्स्ट विल फोकस इन कैलकुलस. ओके, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 e raised to x minus 1 upon x should be 1. सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मैंने क्या किया, क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर में x होना चाहिए. तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मैंने क्या किया, डिवाइड x बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. n मीन्स न्यूमरेटर एंड d मीन्स डिनोमिनेटर. आर यू गेट इट एवरीवन? या, divide x by numerator and denominator and then also separate limit. limit numerator denominator का क्या किया मैंने, separate कर दिया. So see, limit x tends to 0 in bracket e raised to 5 sin x minus 1 upon x. Okay, and minus limit x tends to 0 e raised to 2x minus 1 upon x. क्या क्या numerator में x को मैंने separate कर दिया, क्योंकि ये पार्ट और ये पार्ट अलग अलग है. सो विल सेपरेटली एक ही x इधर भी होगा डिवाइड, इधर भी होगा. समझ में आया कुछ? गुड. देन लेटर डिनोमिनेटर लिमिट x टेंड्स टू 0, जैसे मैंने बताया लिमिट्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया. लिमिट x टेंड्स टू 0 इन ब्रैकेट 5 tan x minus 3x upon x. ओके, आर यू गेट इट? देन लेटर सी दिस मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है, ये भी बहुत यूजफुल स्टेप है. व्हाट? लिमिट x टेंड्स टू 0 e raised to 5 sin x minus 1 and you have x कोएफिशिएंट कितना है 1, तो डिनोमिनेटर में x ही है, बट 1 से मैंने मल्टीप्लाई तो कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि 1 इज एग्जिस्टिंग इन एवरी नंबर. आर यू गेट इट? बट इट्स नॉट x, इट्स 5 sin x. तो मैंने क्या किया, 5 sin x से डिवाइड भी किया और 5 sin x से मल्टीप्लाई भी किया. किसी को कोई प्रॉब्लम? या, गुड. सो क्या हो गया, इसका मीनिंग इसकी तरह आ गया, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 e raised to x minus 1 upon x is equal to 1. As like limit x tends to 0 e raised to 5 sin x minus 1 upon 5 sin x. एंड यहाँ पे डिवाइड x था तो क्या किया, 5 sin x को डिवाइड कर दिया, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x upon x should be what 1. Exactly correct. एंड माइनस, सो इधर लिखा है मैंने सेकेंड फंक्शन माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 e raised to कितना था 2x minus 1 upon, तो x था तो क्या किया, 2 से डिवाइड भी किया, 2 से मल्टीप्लाई भी किया. आर यू गेट इट एवरीवन? आप बोलेंगे हाँ ये x क्यों नहीं लिखा, इट्स नॉट नेसेसरी, क्योंकि e raised to 5 sin x, e raised to 5 sin x, e raised to 2x, e raised to 2x. समझ में आई बात? गुड. सिमिलरली डिनोमिनेटर 5 इज कांस्टेंट, तो मैंने आउटसाइड लिख लिया. एंड लिमिट कांस्टेंट, कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई होता है क्या? नहीं होता, वो खाली वेरिएबल पे, मतलब फंक्शन में हमने पढ़ा है फंक्शन किस पे अप्लाई होता है, जो वेरिएबल है उस पे अप्लाई होता है. कांस्टेंट नंबर पे कोई अप्लाई होगा? नहीं होगा. गुड. फाइन ब्रैकेट लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x upon x minus 3x upon x is what? x cancel, only remaining is 3. This is constant, is not applying in limit. समझ में आई बात?
या सबको दिख रहा है? इट्स वेरी गुड. या सो यू हैव दिस कंडीशन इज व्हाट 1, but sin x upon x should be also 1, but into 5, so we write in frontly 5. No, otherwise some students is write 1 into 5 into 1, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं. बट मैंने 5 फर्स्ट में लिखा, देन लेटर 1 into 1. 1 means what? Limit x tends to 0 raised to 5 sin x minus 1 upon 5 sin x is 1. This value is 1 and 5 sin x upon x is also apply ना. यहाँ मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ. लिमिट x tends to 0 sin x upon x and 5 we write in frontly as like. Okay, and किसी को कोई प्रॉब्लम? So we write 5 into 1 into 1, yeah, 1 into 5 into 1, that meaning is 5, and denominator is having, second part is having limit x tends to 0 e raised to 2x minus 1 upon 2x into 2, that should be 1 into 2, 1 into 2, get it? Then denominator 5 into limit x tends to 0 tan x upon x कितना होता है? 1. So we write 5 into 1 5 and minus 3 constant as like constant, and then we write 5 minus 2 divide 5 minus 3. So 5 minus 3 is 3 and 5 minus 3 is 2, is 3 by 2, and but we are observing limit value कितना है यहाँ पे? 3 by 4. It's not equal. देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? It's very important. 3 by 2, but actually answer is what? Functional value is what? 3 by 4. So what you say? This is discontinuous function. Yes, exactly correct. So we define, see, it's very important, f of x is discontinuous. F of x is discontinuous at x is equal to 0. Okay, since क्या है उसका रीजन? f of 0 is equal to 3 by 4 and limit f of x tends to 0 कितना आया अपना? 3 by 2. So contradiction is there, not equal. So we define this is removable. This function is removable discontinuity. ये फंक्शन कौन से टाइप्स का आ रहा है? फिर पूछा था ना, which the following function is removable discontinuity? Yes, this function is removable discontinuity. Okay, दिख रहा है सबको? So this function is removable discontinuity, and then we redefine. What we redefine? Again we redefine this function. Redefining the function. So कैसे लिखेंगे फंक्शन? f of x is used e raised to 5 sin x minus e raised to 2x upon 5 tan x minus 3x, and x is not equal to 0 and x is equal to 0, then what the answer? 3 by 2. समझ में आया? इसे बोलते हैं रीडिफाइंड रिमेबल डिसकंटिन्यूटी. सबको आ रहा है समझ में? अच्छे से ओके. So it's very simple examples. So we will see next example also. किसी को कोई प्रॉब्लम हो, टीचर नहीं समझ में आया, so ask me anytime. Okay. So listen carefully. नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हम देखेंगे. सबको समझ में आ गया क्या क्या करना था? कि फंक्शनल वैल्यू एंड लिमिट वैल्यू those are existing, then we say this function is continuous function, but those function is different, then we say this function is discontinuous. And then later we find out removable discontinuity. How to removable? मतलब क्या करना था? फंक्शनल वैल्यूज खाली चेंज करना और अगेन वी राइट इन दिस फंक्शन. इसे कहते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. मतलब किसके लिए रिमूव हो रहा है? मतलब कौन से पॉइंट को कंटिन्यूस आ रहा है? अभी कंटिन्यूस हो गया, ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी था. समझ में आ गई बात? गुड. मैं नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा सा अलग टाइप, मतलब अलग अलग फंक्शन होंगे, मतलब हर फंक्शन की एक स्ट्रेटेजी है, इसलिए मैंने बोला कि फंक्शन अच्छे से समझ में आने चाहिए. देन लेटर लिमिट्स के फॉर्म जो हमने पढ़े थे प्रीवियस लेसन में, वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए. ओके. सो नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट टाइप एग्जांपल, इट्स वेरी सिंपल. सी
it's very simple. F of x is gives 3x plus 2 minus 4 less than or equal to x less than or equal to minus 2, and second function is 2x minus 3 minus 2 less than x less than or equal to 6. Okay, and then we'll see what we see. This function is continuous या रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस, वो हम देखेंगे. दिख रहा है सबको? इट्स वेरी सिंपल एग्जांपल. मैंने पहले वाला फर्स्ट दिखाया और लास्ट में फोर्थ वाला दिखा रही हूँ. सो किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछ लेना. रिमेनिंग सम भी हम देखेंगे. सो सी इट्स नेक्स्ट एग्जांपल. एफ ऑफ एक्स इज व्हाट 3x plus 2 and interval is gives -4 less than or equal to x less than or equal to -2. ओके, क्या दिया है देखो. f of x is 3x plus 2 and its interval -4 less than or equal to x less than or equal to -2, and second function is gives 2x minus 3 minus 2 less than x less than or equal to 6. So what does this function is continuous and this function is removable discontinuity. So we will check. See, so अभी क्या है, x less than or equal to कितना है -2 and -2 less than x है मतलब RHS and LHS as like you learn already in limit x tends to a plus and limit x tends to a minus मतलब RHS limit and LHS limit, those are exist and equal, then we say that this is the continuous function. देखो कंटिन्यूअस फंक्शन आइडेंटिफाई करने के 3 टाइप थे कि फंक्शन क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए मतलब एट दैट पॉइंट, मतलब फंक्शनल वैल्यू and limit value those are existing and equal, and third case is RHS limit and LHS limit, those are exist and equal, then we say that continuous limit, continuity, and then we say continuous at that point this function. So it's very simple. x less than or equal to क्या है इसका -2. अभी यहाँ पे x less than or equal to -2 मतलब -2 भी वैल्यू हो सकती है या उससे कम भी हो सकती है. समझ में आ गए? सो निगेटिव चार्ज है इसलिए और वैल्यू ऑलरेडी निगेटिव है. सो वी राइट लिमिट x टेंड्स टू -2 एंड वहां पे ऊपर मतलब इसके ऊपर क्या किया है, माइनस साइन इंडिकेट किया है f ऑफ x, एंड लिमिट x टेंड्स टू -2 रेस टू माइनस साइन दिया है एंड फंक्शन है 3x plus 2 मतलब ये एकदम सिंपल फंक्शन है. सो x इज रिप्लेस बाय डायरेक्ट मेथड जाएंगे हम. डायरेक्ट मेथड मीन्स व्हाट, x इज रिप्लेस बाय -2. 3 इंटू -2 कितना हुआ, -6 plus 2 कितना हुआ, -4. दिस इक्वेशन 1. सिमिलरली फॉर x ग्रेटर देन -2 मतलब -2 लेस देन x ना, सो x इज ग्रेटर देन -2, दैट मीनिंग हमने इनइक्वालिटी भी पढ़ी है. सो लिमिट x टेंड्स टू -2 प्लस f ऑफ x एंड इट्स गिव्स लिमिट x टेंड्स टू -2 इन ब्रैकेट कितना है, फंक्शन क्या है 2x minus 3. सो वी राइट 2 इन ब्रैकेट कितना -2 -3. सो 2 इंटू -2 कितना -4 -3 -7 and then we are observing. So what we write, limit x tends to -2 plus f of x and limit x tends to -2 f of x is not equal, then what do you say, this is the discontinuous function and its removable. functional value दी ही नहीं है, दी क्या functional value, डायरेक्टली यहाँ पे 2 पुट किया, -2 तो -4 -7, इट्स नॉट गिवन. सो रीडिफाइन क्या करेंगे, मतलब जब -2 निगेटिव होगा तो -4 आएगी, पॉजिटिव होगा तो -7 आएगी. समझ में आ गई बात? इट्स वेरी सिंपल एंड देन विल कंक्लूडिंग दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट. समझ में आ गया? सो नेक्स्ट एग्जांपल, इट्स वेरियस एग्जांपल्स नेक्स्ट फॉर्म के भी 10th में जो 10 नंबर के फॉर्म में 10 नंबर के क्वेश्चन में क्या एग्जांपल से वी विल चेक. ओके, बाकी क्या आपको करने हैं ये ध्यान में रखना है सबने. ओके, एंड एनी डाउट्स एनी क्यूरी देन लेट मी नो. 10 नंबर में क्या दिया है अच्छे से देखो, फंक्शन दिया है f ऑफ x, क्या दिया है f ऑफ x इज
न्यूमरेटर में रूट 2 प्लस साइन एक्स, रूट 2 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 3 एंड डिनोमिनेटर इज cos square x and x is not equal to pi by 2. Okay, is continuous. क्या बोला ये? is continuous and x is equal to pi by 2. So find f of pi by 2. देखो कितना अच्छा सम है, एकदम अच्छे से देखना है। क्या बताया हमें? देखो बहुत सारे सम मैंने सॉल्व करके भी रखे हैं, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। ओके, इट्स वेरी सिंपल। सो क्या पूछा है यहाँ पे हमें? इट्स वेरी सिंपल। फंक्शन क्या दिया है? रूट 2 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 3, डिनोमिनेटर में क्या है? cos स्क्वायर एक्स एट एक्स इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। इट्स कंटिन्यूअस, और फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस बोला है, किसे? पाई बाई 2 को। एंड देन फाइंड एफ ऑफ पाई बाई 2, मतलब कंटिन्यूअस दे आर फंक्शनल वैल्यू पूछिए। देखो बहुत तरह तरह के एग्जांपल्स है यहाँ कंटिन्यूअस में, मतलब आइडेंटिफाई करना है। एक ही फॉर्मेट है, एक ही डेफिनेशन है, बट अलग ढंग से वो पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो इसलिए कॉन्शियस रहना पड़ता है। सो कंटिन्यूअस दिया और फंक्शनल वैल्यू नहीं दी है। पहले क्या था? फंक्शनल वैल्यू दी थी और कंटिन्यूअस पूछ रहे थे, उसका ही वाइस वर्सा है। समझ में आ गई बात? गुड। सो इट्स वेरी सिंपल। फंक्शन इज f of x is continuous at x is equal to pi by 2, जो हमें पता है वो हमने राइट कर लिया। देन लाइटर, अभी वो कंटिन्यूअस है, सो विल डिफाइन, मतलब क्या करेंगे? आपको पता है अभी हमने देखा कि फंक्शनल वैल्यू, जो फंक्शनल वैल्यू है वो और लिमिट वैल्यू दोनों क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। यस और नो? मतलब लिमिट वैल्यू एंड फंक्शनल वैल्यू दोनों आर इक्वल, देन वी से कंटिन्यूअस। ये क्राइटेरिया पता है ना हमें, तो इसी हिसाब से मैंने लिखा। सो फंक्शनल वैल्यू हमें पता हो जाएगी, क्योंकि लिमिट वैल्यू जो आएगी सो कंटिन्यूअस, इसलिए क्या होगी? फंक्शनल वैल्यू वही आएगी। सी, सो लेट्स स्टार्ट। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2। न्यूमेरेटर क्या है? रूट 2 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 3 एंड डिनोमिनेटर cos स्क्वायर एक्स। अच्छे से देखना सबने, एफ ऑफ पाई बाई 2। ओके, सबको दिख रहा है क्या है? एकदम गुड। सो इट्स वेरी सिंपल। लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 इज गिव्स एंड फंक्शन राइट कर लिया मैंने। अभी आपको पता है, जहाँ जहाँ मैंने बहुत पहले गूगल मीट में भी बोला था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हमने पढ़ी है, रैशनलाइजेशन मेथड पढ़ी है, फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ी है। सो अभी पहले हम क्या करेंगे? पाई बाई 2 वैल्यू पुट करके देखेंगे। सो रूट 2 प्लस साइन पाई बाई 2, और आपको पता है साइन 0, साइन 90, साइन पाई बाई 2 मतलब कितना? साइन 90 डिग्री। सो साइन 90 डिग्री कितना आता है? 1 ऑब्वियसली। सो विल पुट एंड कॉस पाई बाई 2 कितना आता है? 0। अरे 0 ही आता है ना। सो विल चेक, तो कितना है? 2 प्लस 1 मतलब कितना? रूट 3 माइनस रूट 3 एंड डिनोमिनेटर 0, दैट टाइप इंडिटरमिनेट फॉर्म आता है। यस और नो? सो इसे कैसे सॉल्व करें? इट्स वेरी सिंपल। सब्स्टिट्यूशन से पहले हमने रैशनलाइजेशन मेथड पढ़ा है ना, वही से हम करेंगे, क्योंकि इजी जाएगा। समझ में आ गया? सो कैसे? इट्स वेरी सिंपल। आप बोलेंगे टीचर यहाँ डायरेक्टली हम पुट कर देंगे, कोई जरूरत नहीं है, रैशनलाइजेशन करो, अच्छे से आ जाएगा। सो रैशनलाइजेशन किसका होगा? न्यूमेरेटर का। और ये कैसे आइडेंटिफाई करना है? अब ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है क्या? रूट 2 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 3 नहीं है, तो उसके कॉन्जुगेट से न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब स्टैंडर्ड फंक्शन आ जाएगा। ये तो हमने पढ़ा है ना पहले, या वही टेक्निक हमें यूज करनी है। सो व्हाट वी राइट? न्यूमेरेटर का कॉन्जुगेट से न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। रूट 2 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 3, डिनोमिनेटर cos square x and multiply its conjugates is what? Root 2 plus sin x plus root 3। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या किया मैंने? रूट 2 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 3 से क्या किया? मल्टीप्लाई करना है। सो व्हाट आर वी राइट?
लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई 2 इन ब्रैकेट। अभी आपको पता है √2 प्लस साइन एक्स, √2 प्लस साइन एक्स कितना है भाई 2 प्लस साइन एक्स माइनस √3 इंटू प्लस √3 -3 या करेक्ट। एंड डिनोमिनेटर में कितना आएगा cos स्क्वायर एक्स इन ब्रैकेट रूट में 2 प्लस साइन एक्स प्लस √3 देन लेटर। अभी यहाँ पे क्या होगा लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई 2 एज इट इज। ओके सो साइन एक्स माइनस कितना आया भाई 1 आया। ओके एंड डिनोमिनेटर में एज इट इज cos स्क्वायर एक्स रूट 2 प्लस साइन एक्स प्लस √3 देन लेटर। इट्स वेरी सिंपल। डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर आहे, न्यूमरेटर मध्ये काय sin x मायनस 1 आहे। तर काय करणार आपण सी यू हैव फंडामेंटल आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक्स पढ़ा है ना आपने। sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स कितना आता है 1। सो व्हाट वी राइट cos स्क्वायर एक्स इज व्हाट 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स एंड देन यू हैव 1 स्क्वायर sin स्क्वायर एक्स इज मीनिंग क्या 1 माइनस sin x 1 प्लस sin x। आर यू गेट इट एवरीवन? या इट्स वेरी सिंपल। सो ये रब कर देती हूँ, देखो अच्छे से सुनना। इतना तो पता है ना, ये फंडामेंटल आइडेंटिटी पढ़ा है ना आपने ट्रिगो में, या पढ़ा नहीं है वो भी बताओ मैं। आई थिंक यू लर्न। ओके सो इट्स वेरी सिंपल। सो व्हाट वी राइट sin x minus 1। so we redefine what limit extends to 0। दिख रहा है थोड़ा रेड मार्कर है या इट्स विजिबल नो। सो वी राइट अगेन लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। सो वी राइट sin x माइनस 1 को मैंने माइनस में कन्वर्ट किया तो क्या हो गया 1 माइनस sin x एंड डिनोमिनेटर 1 माइनस sin x एंड 1 प्लस sin x एंड ब्रैकेट √2 प्लस sin x प्लस √3। समझ में आ गया सबको? आर यू गेट इट एवरीवन? इट्स विजिबल? या इट्स विजिबल। सो इट्स वेरी सिंपल। व्हाट वी राइट -1 माइनस sin x क्या हो गया इलिमिनेट हो गया। सो व्हाट वी राइट limit extends to not a 0 pi by 2 is there, huh? My mistake is there। limit extends to pi by 2 and numerator is having 1। okay and denominator as it is 1 plus sin x and √2 plus sin x plus √3। it's very simple। are you get it everyone? अरे समझ में आ रहा है भाई सबको? या गुड, जरूरी है समझ में आना। सो क्या किया sin x माइनस 1 था। सो वी राइट इन कॉन्जुगेट फॉर्म माइनस इन आउटसाइड एंड 1 माइनस sin x। दैट मीनिंग cos स्क्वायर x इज यू हैविंग sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर एंड sin स्क्वायर x मीन्स व्हाट 1 माइनस sin x एंड 1 प्लस sin x। ओके तो देखो अच्छे से। So very simple, we write -1 and then we put limits value। so -1 as it is and then you have sin pi by 2 is what 1। so we write 1 plus 1 and in bracket √2 plus sin pi by 2 means what 1 and plus √3। so what do we write -1 as it is and it's 1 plus 1 2 and root में 2 plus 1 how much 3 √3 plus √3 how much 2 √3। so what do you write -1 by 4 √3 and you know this is a continuous function। so we write -1 upon 4 √3 is the value of f of pi by 2। why we write limit extends to pi by 2 f of x is equal to f of pi by 2। it's very simple examples and it's very nice examples is having। so you take a practice। ओके सो एवरीवन केयरफुली समझ में आ रहा है सबको? इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इन कंटिन्यूटी। मैंने 8.1 के एग्जांपल में 9 के 2 एग्जांपल बताए और 10 में एक एग्जांपल बताया। अभी 3 एग्जांपल्स हमने
पड़े। ओके, यही आप आज के दिन देख लेना, और जो कुछ भी डाउट होगा सो पूछ लेना। ओके, या कमेंट्स करो, या व्हाट्सएप नंबर है मेरा आपके पास, सो यू आस्क मी एनी डाउट्स। ओके, टेक केयर, थैंक यू।